Good morning, children. Today I'm going to teach you a poem on the grasshopper and the cricket. The poetry of earth is never dead. When all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees, a voice will run. From hedge to hedge about new mown mead, that is the grasshopper's, he takes the lead. In summary luxury he has never done with his delights, for when tired out with fun. He rests at ease beneath some pleasant weed. The poetry of earth is ceasing never on a long winter evening when the frost has wrought a silence from the stuff their shrills. The cricket's song in warmth increasing ever and seems to one in drowsiness half lost. The grasshoppers among some grassy hills by John Keats. Okay, children, first we will know about the poet John Keats. Okay, John Keats was born in 1795 and died in 1821. He belongs to the second generation of Romantic poets. His poetry is characterized by elaborate word choice and sensuous imagery. This is the most notable in his great odes, which remain among the finest poem in English literature. Okay, children, I will explain this poem in Hindi also. Okay? The poetry of earth is never dead. Means the poem opens with the poet asserting that the poetry of earth, the voice of nature, is always alive. मीन्स बच्चों इस लाइन में जॉन कीट्स कहना चाहते हैं कि जो अर्थ की पोएट्री है, नेचर की, प्रकृति की जो आवाज़ है, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली, वो हमेशा अलाइव रहेगी, जीवित रहेगी. ओके? When all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees, a voice will run. Children, here poet is telling, even when all the singing birds are tired in the hot summer and take shelter under the shady branches of trees, the nature song can still be heard. Okay? बच्चों इस लाइन से पोएट का तात्पर्य है कि जो सिंगिंग बर्ड होती हैं, जो कि माना जाता है कि चिड़ियों की चहचहाट जो होती है हमेशा सुनाई देती है ना, लेकिन इस भीषण गर्मी में वो थक गई हैं, उन्हें चक्कर आ रहा है, वो फेंट हो जाएंगी अगर ज़्यादा चहचहाई तो, इसलिए वो अपने घोंसले में दुबक कर, जो कि शेडी ब्रांचेस के इधर बना हुआ है, जाकर बैठ गई हैं, आराम कर रही हैं. ओके लेकिन जो नेचर का जो सॉन्ग है वो अभी भी सुनाई दे रहा है. ओके From hedge to hedge about the new mown mead, that is the grasshopper's, he takes the lead. Mean children here, a voice which runs from hedge to hedge and around the freshly cut grassland. Grassland means meadow, is the grasshopper's voice. Grasshopper is singing. Okay, and the grasshopper takes over the duty of carrying on with the everlasting song. Bird has stopped singing, but the grasshopper has taken the lead. Okay, and he's carrying on with the everlasting song even during summer. Okay, means बच्चों पोएट कह रहा है कि चिड़ियों ने तो चहचहाना बंद कर दिया है, और चिड़ियों के चहचहाना बंद हो जाने के बाद भी एक आवाज़ सुनाई देती है जो पूरे वातावरण में गूंजती है, तो वो ग्रास ऊपर की आवाज़ होती है, जो एक हेज से दूसरे हेज से उछल उछल कर, जो फ्रेशली कट ग्रासलैंड है, कटा हुआ जो घास का मैदान है, उसके चारों तरफ उछल उछल कर ही टेक्स द लीड, मीन्स कमान संभालता है, अपनी ड्यूटी करता है, और प्रकृति की जो मधुर ध्वनि धूमिल न हो जाए, खम न हो जाए, इसलिए वो अपनी मधुर आवाज में उस भीषण गर्मी में भी क्या करता है, म्यूजिक जारी रखता है. ओके इन समर लग्जरी ही हैज नेवर डन with his delights, for when tired out with fun, he rests at ease beneath some pleasant weed. Children, here poet means that in summer season, as it is luxury for him,
means the grasshopper is fun loving and cheerful in summer. Okay, he takes rest under the pleasant weeds only when he has worked hard and found it pleasurable. ओके इस लाइन में बेटा पोएट कह रहा है कि समर सीजन में ही ग्रास होपर बहुत मज़े करता है और बहुत ज़ोर शोर से सॉन्ग सिंग करता है। ओके जो कि पूरे वातावरण में गूंजती है। उसे गर्मी के मौसम में खुश रहना बहुत ही पसंद है। वो इतना मगन रहता है कि उसे रेस्ट की चिंता नहीं होती है। वो सिर्फ आराम करने के लिए सुंदर और आरामदायक घास पर ही बैठता है जब वो या तो थका होगा या मजे करने के लिए तभी वो आराम करता है। ओके द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर। Main children, the poet repeats the main theme of the poem that the voice of earth is never comes to an end. अर्थ की जो धुन है, जो वॉइस है, कभी भी सीज नहीं होने वाली, कभी भी एंड नहीं होने वाली। ओके On a lone winter evening, when the frost has wrought a silence from the stove, there shrilled. Main children, in an isolated winter evening, when frost has put everyone and everything on silent mode, one can still hear the song of cricket coming from the stove. मेन चिल्ड्रन यहाँ पर पोएट कहना चाहता है कि जब गर्मी चली जाती है और एकदम आइसोलेटेड मीन एकदम शांत ठंडी पड़ जाती है जाड़े के मौसम में, क्या होता है जब सब लोग और सब चीज़ें शांत और जमी हुई दिखाई पड़ती है, उस समय भी हमारे अर्थ की जो पोएट्री है शांति जो है नहीं होती है, शांत नहीं होती है। हम लोग फिर भी क्रिकेट की जो झिंगुर की आवाज़ होती है स्टफ के नीचे से, किचन के अंदर से पूरे अर्थ पे क्या करती है, गूंजती हुई सुनाई देती है। ओके मतलब जो ग्रास होपर जो गर्मी में जो आवाज़ें निकालता है उसको ठंडी में कौन रिप्लेस कर देता है, क्रिकेट। ओके द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर। Main children, here a poet is telling, so chilly atmosphere forces the cricket to seek warmth indoors, but he cannot stop his music. Rather, his music gets louder with the passage of time. In warmth increasing ever. Okay? Means gets louder with the passage of टाइम। मीन्स पोएट इस लाइन में कह रहा है कि इतना चिली, इतना जम जाने वाली सर्दी में भी अपने सॉन्ग से पूरे वातावरण में गर्मी पैदा कर देना चाहता है कौन, क्रिकेट। लेकिन वो अपना सॉन्ग बंद नहीं करना चाहता। भले ही समय बीतते ही जो क्रिकेट का जो म्यूज़िक है तेज हो जाता है, लाउडर हो जाता है, लेकिन रुकता नहीं है। तो क्रिकेट अपने आवाज़ से इस चिली सीजन में भी गर्मी का एहसास अपने सॉन्ग से दिलाना चाहता है। ओके एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस हाफ लॉस्ट द ग्रास होपर्स एमंग सम ग्रासी hills. Mean children, here poet is telling, to a man who is feeling sleepy or half slept, the cricket song or sound exactly like the grasshopper's voice among some grassy hills during the summer season is heard. ओके इस लाइन में बेटा पोएट कहना चाहता है कि जिन लोगों को नींद आ रही है या जो आधे नींद ले चुके हैं, ओके जबकि ले चुके हैं, वो क्रिकेट की म्यूजिक सुनकर ग्रास होपर को याद करते हैं, जो कि गर्मी के मौसम में हिल्स पर घास के मैदान पर से क्या करता है, सॉन्ग सिंग करता है। और लोग ठंडी के मौसम में सेम ग्रास होपर की आवाज़ क्रिकेट जब देता है तो क्रिकेट की आवाज़ सुनकर ग्रास होपर को याद करते हैं और इस चिली ठंडी में गर्मी का एहसास करते हैं। ओके तो बेटा ये जो पोयम है इसमें पोएट हमें यह बताना चाहता है कि जो अर्थ है, नेचर है, वो हमें खुशियाँ ही देती है, चाहे वो खुशियाँ देने का कोई भी साधन हो।
ओके तो हमें आशावाद से भरपूर इस खुशियों को कंटिन्यू रखते हुए हमें भी प्रकृति के साथ खुशियाँ मनाना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।